غور کیجیے، یہ وہ عاشق مصطفیٰ تھے جو نبی کے عشق میں زندگی گزارتے تھے، اور ہر شے سونا چاندی ہیرا موتی ہر چیز سے زیادہ وہ لوگ اپنے ایمان کو غور نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کو معلوم تھا یہ سونا چاندی ہیرا موتی اور جو ہم زندگیاں گزارتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، یہ محض چند روز کی دنیا ہے، چند دن کی زندگی ہے، لیکن ایک مومن بندے کے لیے، ایک اہل ایمان کے لیے اس کے ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا انہوں نے اپنے ایمان کا دورہ نہیں کیا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرما دیا، چاہے بندے اہدنا الصراط المستقیم، مان کیا مان؟ غور کیجیے، خالق کائنات ہمیں صاف واضح طور پہ بتا دیا، انسان مان ہم سے کیا مان؟ کہہ دے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ کون فرما رہا ہے؟ میرا رب فرما رہا ہے۔ کمال عشق مسیح کا جہاں سجدہ نظر آیا، کبھی جلوہ نظر آیا، کبھی چہرہ نظر آیا۔ غور کیجیے، وہ کون سا راستہ ہے، وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سا راستہ ہے جن کو خود خالق کائنات ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ انسان ہم سے سونا چاندی نام مانگ کر سیدھا راستہ مانگ لے۔ وہ سیدھا راستہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، سونے چاندی ہیرا موتی زمین جائیداد ہر شے ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ راستہ کہاں ہے، کیسا ہے، اور یہاں تک یاد رکھے گا وہ راستہ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، یہ کہنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں۔ یاد رکھے گا کہ نماز بعد میں سیدھا راستہ کرے، سبحان اللہ، روزہ بعد میں سیدھا راستہ پہلے، زکات بعد میں سیدھا راستہ پہلے، زکات بعد میں سیدھا راستہ پہلے، عمرہ بعد میں سیدھا راستہ پہلے۔ تو سیدھا راستہ کیسا ہے، کہاں ہے، اور کس راستے کی بات ہو رہی ہے؟ غور کیجیے، جو ہر شے سے زیادہ قیمتی ہے، ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے، کہ خالق کائنات نے کہا دیا کہ کچھ نہ مانگ کر ہم سے تو سیدھا راستہ مانگ لے۔ تو غور کیجیے، وہ کیا راستہ ہے جسے عرف عام میں عقیدہ کہا جاتا ہے۔ آن کا گھر تیرا نہیں ہوتا، اپنا چلتا ادا نہیں ہوتا، دل کا بے دبا کنکر بھی وہ جو چاہے تو کیا نہیں ہوتا۔ وہ راستہ کون سا ہے، کہاں ہے؟ غور کیجیے، اس سوال کے جواب کے لیے خالق کائنات نے انسانوں کو بھٹکنے نہیں دیا، بلکہ قرآن مقدس نے اعلان عام کر دیا۔ اسی آیت سے آگے میں ارشاد فرما دیا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ بس وہ راستہ انعام پانے والوں کا راستہ ہے۔ تو پھر غور یہ کرنا ہے تو انعام پانے والے کون ہے؟ یہ حضرت مسیح کی ساری دولتیں جس راستے میں قربان ہے، آخر وہ راستہ کہاں ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ وہ راستہ کیا ہے، انعام پانے والوں کا راستہ ہے، انبیاء کا راستہ ہے، مرسلین کا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ ہے، اولیاء اعظام کا راستہ ہے۔ ان کے طریقے کو ہم اپنا لیں، ان کے ادار کو اگر ہم اپنا لیں تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ایسے ہوتے تھے، ایسے ہوتے ہیں صحابہ اکرام، ان کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجیے، ویسے تھے کہ اپنی زندگی خدمت خلق میں گزار دیا۔ عبادت عبادت جو فرائض ہم پہ آئے تھے ان کو تو مکمل یہ ادا کرتے تھے، لیکن مکمل طور پہ انسانوں کے حقوق کا بھی وہ خیال کیا کرتے تھے۔ یہ ہوتے عاشق مصطفیٰ، یہ ہوتے اس راستے سے چلنے والوں کا کردار۔ یہ لوگ کسی چیز کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے ہیں، ان کا منشا اور ان کا مقصد فقط یہ ہوتا ہے کہ دنیا راضی ہو یا نہ ہو، بس اللہ واللہ کے رسول راضی ہو جائے۔ انہوں نے مقصد حیات کو پہچان لیا۔ یہ ہوتے ہیں عاشق مصطفیٰ، کہ چلنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا زندگی کے ہر مراحل جو درپیش آتے ہیں زندگی گزارنے میں، ہر اعتبار سے ان کو رب کی رضا چاہیے، مصطفیٰ کی رضا چاہیے۔ جو لوگ کھاتے بھی ہیں تو مصطفیٰ اللہ رسول کی رضا کے لیے چلتے ہیں پھرتے ہیں، کوئی بھی کام انجام دیتے ہیں، ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ مجھ سے مصطفیٰ راضی ہو جائے، میرے افعال سے، میرے اظہار سے، میرے اعمال سے اللہ کا رسول راضی ہو جائے، تاکہ دنیا میں کامیاب ہو جائے اور آخرت میں کامیاب۔ خدمت خلق کا وہ لوگ خیال کرتے تھے کہ اولیاء کی جماعت اور یہ صحابہ اکرام اور جو عاشق مصطفیٰ ہوتے ہیں نبی کے کردار کو چلاتے ہیں۔ غور کیجیے، خدمت خلق بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ فرائض جو ہم پہ عائد ہیں وہ تو عائد ہیں،
खिदमत खल्क, लोगों की खिदमत करना, दूसरे के दुख सुख में काम आना, ये भी बहुत बड़ी इबादत है। गौर कीजिए, उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु को ये पता चला, ये खलीफा है, उन्हें पता चला कि एक इलाके में एक बुढ़िया रहती है जो बहुत मासूम है, उनका कोई वारिस नहीं है, उसके खानदान में कोई देख रेख करने वाला नहीं है, वो बहुत ज़ईफ़ा है, बहुत कमजोर औरत है। जब उन्हें पता चला तो उस बुढ़िया के दरवाजे पे जाकर गौर कीजिएगा कि साहबा रोते कैसे हैं, मुस्तफा के चाहने वालों का किरदार कैसा होता है और ये किस चीज को पसंद करते हैं। गौर कीजिए, उमर फारूक को पता ये चला और मुझे पता है कि खिदमत खल्क का बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ा इनाम है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु उस दुनिया के चौखट पे दस्तक देते हैं और इजाजत तलब करके घर में दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद उस बुढ़िया से अर्ज करते हैं, ये बुढ़िया, मैं उमर बिन खत्ताब हूँ, मैं उमर हूँ। ऐ बूढ़ी माँ, मैंने सुना है कि तेरी खिदमत करने वाला कोई तेरा वालिद कोई नहीं है, मैं तेरे पास आया हूँ, अगर मेरे लायक कोई काम हो, कोई खिदमत हो तो मुझे बोल, मैं तेरी हर खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक कि खाना बनाना हो, चाहे तेरी जिंदगी गुजारने में जो भी दरपेश मामलात आते हैं, जो भी मुश्किलात आते हैं, मुझे कहे, मैं तेरी खिदमत करूंगा, मुझे खिदमत का शब्द बख्श दे, मुझे खिदमत का मौका दे। बुढ़िया ने कहा कि नहीं, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, इसलिए एक बंदा है, बहुत नेक बंदा है, बहुत शरीफ बंदा है, वो आता है मेरा काम कर चला जाता है। वो बंदा आता है मेरा काम कर चला जाता है, मुझे तेरी हाजत नहीं है। उमर फारूक खिदमत करता है, इसका अमाल तू मुझे भी मौका दे दे, मैं भी कुछ सवाब का हकदार हो जाऊं। बुढ़ी ने कहा कि नहीं, तेरी कोई जरूरत नहीं है, बल्कि वो इंसान जो आता है मेरी खिदमत के लिए, वो इंसान बहुत मुखलिस इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, मुझे किसी और की हाजत नहीं है। तू बता, तू आया, आने के बाद तुमने अपना नाम बताया, मैं उमर फारूक हूँ, लेकिन वो बंदा इतना शरीफ है, इतना नेक है कि मैं हमेशा उसको पूछती रही, बंदे ये बता, ये अल्लाह के नेक बंदे ये बता, तेरा नाम क्या है? तो आज तक उसने अपना नाम तक नहीं बताया। वो आता है, मेरे लिए खाना बनाता है, मुझे खाना खिलाता है, यहाँ तक कि मैं ज़ईफ़ा हूँ, मैं जो खाना पेशाब कर देती हूँ उसको साफ भी आकर कर जाता है, मेरी चादरें बदल दिया करता है और मुझे खाना बनाकर मुझे खिलाकर चला जाता है। वो बंदा बहुत शरीफ है, उसके जैसा बंदा मैंने नहीं देखा। और मैंने उसे बारहा पूछा, अपना बेटा अपना नाम बता दे, उसने अपने नाम तक नहीं बताया। कहता है कि अम्मा जान, तुझे खिदमत चाहिए, मैं खिदमत के लिए हाजिर हूँ, नाम में क्या रखा है? अम्मा जान, अगर कोई काम हो तो मुझे बता दे, नाम में क्या रखा है? मैं बारहा उसे पूछती हूँ, लेकिन आज तक कई वर्षों से आता है, कई सालों से आता है, खिदमत करके चला जाता है, लेकिन आज तक अपना नाम नहीं बताया। लेकिन तू आया है, आते आते जो रहा है उमर बिन खत्ताब हूँ, लेकिन शख्स का किरदार देखा तक तेरे नाम तक नहीं बताया। कहा कि बस तुझे जरूरत है, मैं तेरी खिदमत कर देता हूँ ताकि मैं अल्लाह के रसूल हमसे राजी हो जाए। ए बुरी माँ, बस मेरे लिए दुआ कर दे, मेरी खिदमत कर चला जाता है। लिहाजा इतना सुनने के बाद उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताजुब में डूब जाते हैं और सोचते आखिर वो बंदा कौन है, इतना शरीफ बंदा कौन है जो बुरी की खिदमत करके चला जाता है। तो वो उमर फारूक पूछते हैं कि वो बंदा कब आता है? उन्होंने बताया कि रात सन्नाटा जब छा जाता है तो वो शख्स आता है मेरी खिदमत के लिए, हर चीज जरूरियात के जो भी चीजें होती हैं सब कर चला जाता है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु रात में नमाज पढ़ने के बाद वो क्या करते हैं, उस बुढ़िया के घर के सामने छुप कर बैठ जाते हैं, ये पता लगाने के लिए ये कौन ऐसा शख्स है जो बूढ़ी माँ का इस कदर खिदमत करता है, आता है, हर जरूरियात को पूरा करता है, खाना बनाता है, घर की सफाई करता है, चला जाता है, आज तक अपना नाम तक नहीं बताया। उनके दिल में ये ख्वाहिश उत्पन्न हुई कि मैं उस शख्स को देख लूं, आखिर वो शख्स कौन है। लिहाजा वो क्या देखते हैं कि जब रात का सन्नाटा छा जाता है, एक शख्स निकाब फरोश, एक शख्स जिसके पैर पांव में चप्पल भी नहीं, जूतियां भी नहीं है, धीरे धीरे बूढ़ी के घर की तरफ बढ़ता है। जैसे बूढ़ी के घर के दरवाजे के सामने पहुंचता है, उमर फारूक उसके दामों को पकड़ लेते हैं, कहते हैं शख्स तू कौन है? बुरी माँ ने तेरी बहुत तारीफ की है,
बहुत अच्छे तरीके से बुरी माँ की खिदमत करता है, ऐसा शख्स अपना निकाब हटा, अपने चेहरे से कपड़े को हटा, ताकि मैं देखूं वो अल्लाह का कौन सा बंदा है, अपना चेहरा दिखा। लिहाजा जैसे ही चेहरे से उस शख्स ने पर्दे को हटाया तो क्या देखते हैं, कौन था? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु थे। देखने के बाद वो ताज्जुब में डूब जाते हैं और वो अबू बकर सिद्दीक के किरदार को भी जानते हैं, मचल जाते हैं, खुशी में डूब जाते हैं और खामोश हो जाते हैं। ये अबू बकर सिद्दीक का किरदार है। गौर कीजिए, ये होते हैं औलिया अल्लाह, ये होते हैं नबी के चाहने वाले गुलाम, जो अपने हैं दिलों के लिए गम सुख में साथ देके तन मन धन जिस तरह भी हो लोगों की खिदमत किया करते हैं। ये होते हैं। एक हमारा किरदार अपने गिरबान में लोग झांक कर देख ले, फराइज तो सही से मजा नहीं कर पाते तो मतलब कल की बात ही छोड़िए। भाई भाई में तफरका, मोहल्ले मोहल्ले वालों में तफरका, आज किसी जिंदगी में भी नहीं बताने की जरूरत नहीं है। गौर कीजिए, उस सीधे रास्तों को आप पहचानिए, चलने की कोशिश कीजिए, तब हमारा और आपका बेड़ा पार होगा। गौर कीजिए, इसी तरह एक अल्लाह के वली है शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि, दिल्ली के रहने वाले दरवेश हैं। अल्लाह ने बहुत बड़ा रुतबा से उन्हें नवाजा था। उनके चाहने वाले लोग थे। गौर कीजिए, उनके चाहने वाले बहुत सारे लोग थे। उनके खानकाह पे लोग आते, दरवेश की खिदमत करते, पीर साहब की खिदमत करते। लिहाजा एक शख्स ऐसा था, एक चाहने वाला उनका मुरीद ऐसा था कि वो मुरीद हजरत की बारगाह में हाजिर होता था और हजरत की खिदमत किया करता था, उनकी बाजू नसीहत को सुनता था और मार्फत का जाम किया करता था। और उस शख्स की 6 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी? 6 बेटियां थी। एक मतबा हजरत की बारगाह में आया, पीर साहब की बारगाह में आया, हजरत शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में हाजिर होता है, कहता है हुजूर मैं गरीब हूं, मुफलिस हूं, मेरी 6 बेटियां हैं और शादी के लिए बहुत अखराजात हैं, बहुत पैसे चाहिए। आमतौर पर एक लड़की की शादी करने के लिए 1000 दिरहम दरकार है। 1000 दिरहम अगर मिल जाए तो एक लड़की की शादी अच्छे से हो जाए। हजरत दुआ किया कीजिए, दुआ कर दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला शादी का इंतजाम कर दे। मामला ये हुआ, वो शख्स जो इसे दुआ की गुजारिश किया करता था, उसका एक विरोधी यहूदी था, ईसाई था, विरोधी ईसाई था, जो हजरत शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि को देकर जला करता था। क्योंकि मुसलमानों के पेशवा थे, रहबर के पीर थे, और ये क्या था? ईसाई था। उनसे जला करता था, उनसे दूर रखा करता था। एक मरतबा वो शख्स जो उनका पड़ोसी था, वो गरीब दरवेश उसको बुलाता है, कहता है ऐसा तेरी 6 बेटियां है। उस दरवेश के बारगाह में पड़ा रहता है, सिर्फ बाजू नसीहत सुनता है, उनकी खिदमत करता है। तुम्हारी 6 बेटियां हैं कि शादी के बारे में सोच, इस दरवेश तुमको कुछ देने वाला नहीं है, इस दरवेश से कुछ होने वाला नहीं है, तुम क्यों उसके पास जाते हो? तुम्हारी 6 बेटियां हैं, तुम काम काज करो, इस दरवेश तुमको कुछ देने वाला नहीं है। उस दरवेश मुरीद को गुस्सा आ जाता है, कहा कि तुमको नहीं पता है मेरे हजरत का मकाम क्या है। अल्लाह ने मेरे हजरत को, मेरे पीर को क्या रुतबा अता फरमाया है। तू दुनिया परस्त इंसान है, दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान है, तू क्या जानेगा मार्फत किसे कहते हैं, हकीकत किसे कहते हैं, रूहानियत किसे कहते हैं, तरीकत किसे कहते हैं, तुझे क्या पता? तू दुनियादार इंसान है। मेरे हजरत के खिलाफ अगर एक शब्द भी बोला तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तू मेरे हजरत के खिलाफ एक लफ्ज ना बोल। तू नहीं जानता है हजरत का मतबा क्या है, हजरत का रुतबा क्या है। अगर मेरे पीर के शान में गुस्ताखी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह शख्स फिर बदतमीजी पे आ जाता है, फिर कहता है कि सुन वो दरवेश तुम्हारा जो पीर है वो कुछ तुम्हें देने वाला नहीं है, तुम्हें 6 बेटियां है, इनका बेड़ा पार कैसे होगा? वो दरवेश तुझे कुछ देने वाला नहीं है, उसका तो खुद मदरसा चलता है तो चंदे पे चलता है, खलका चलता है तो चंदे पे चलता है। वो इंसान तुम्हारा इंतजाम, तुम्हारी परेशानी को दूर कैसे कर देगा? सुन, मैं तुझे एक ऑफर देता हूँ, मैं ऑफर ये देता हूँ कि जा अपना पीर से कह कि अगर वो 6 महीना का एग्रीमेंट तैयार कर ले कि 6 महीना मेरे घर वो नौकरी करेगा, 6 महीना मेरे घर अगर वो नौकरी करेगा तो मैं उसे 6000 दिरहम दूंगा, जिससे तू अपने बेटी की शादी कर लेगा।
तो उसका मन का मकसद था उनको जलील करना, उनको रुसवा करना। तो वो जज्बात में आकर, बुग़्ज़ इनाद में आकर ये जुमला उन्होंने से कहा, बेटा है तुम, मैं मुझे ऑफर करता हूँ, मेरे पास बहुत माल है, मैं इस इलाके में बहुत मालदार इंसान हूँ, मेरे जैसा कोई मालदार यहाँ पे नहीं है, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास माल है, बहुत सारी मवेशियां हैं, गाय है, बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर तू अपना ठीक से जा कह दे, अगर तेरा पीर मेरी गुलामी को पसंद करता है, नौकरी को पसंद करता है, अगर 6 महीना तेरा पीर मेरे यहाँ खिदमत करे, नौकरी करे और मेरे गायों को चारा लगाए, चारा दे, खिदमत करे, तो मैं तुझे अभी ही इसी वक्त 6000 दिरहम अता कर दूंगा। क्योंकि वो इनाद बुग़्ज़ के बिना पे ऐसा बात बोल देता है। इतना सुनना था कि ये कोई इंसान बढ़ता ही जा रहा है, मेरे इतने मुर्शिद की शान में गुस्ताखी कर रहा है, उनको हकीर दिखा रहा है, वो जज्बात में आ जाता है। जज्बात में आने के बाद उसके काले को पकड़ता है, 2 चाटा मारता है, कहता है कमबख्त आइंदा ऐसा बोला तो तुम्हारी नट्टी दबा दूंगा, तुम्हें हलाक कर दूंगा। यहाँ तक कि लोग का भीड़ इकट्ठा हो जाता है और लोग क्या करते हैं, किसी तरह उस झगड़े को हटा देते हैं। गौर कीजिएगा, किसी तरह भी उसके झगड़े को हटा देते हैं, अलग कर देते हैं, लेकिन ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। गौर कीजिएगा, ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि फलां ईसाई ने शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दरवेश की बेइज्जती की, बुग़्ज़ इनाद के बिना पे उनके बारे में बुरा भला कहा, नासेबा बोलियां बोली, लिहाजा फलां दरवेश ने उसे मारा है, उसने झगड़ा हो गया है, लिहाजा गांव मोहल्ले में बात तेजी से फैल जाती है। गांव मोहल्ले में ये बात तेजी से फैल जाती है। जब ये बात की खबर हजरत शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंची तो क्या करते हैं, गौर कीजिए, अल्लाह वालों की शान क्या होती है, गौर कीजिएगा। ये बात जब उनके कान तक पहुंची तो क्या करते हैं कि सुबह होते ही उस ईसाई के दरवाजे पे चले जाते हैं, कहते हैं ईसाई सुन, तुझसे मुझसे कुछ बात करनी है। वो कहते हैं ये बता, मेरा फलां मुझ से तूने ये जुमला कहा कि अगर तुम्हारा पीर अगर 6 माह मेरे गायों को चारा ला कर दे, नौकरी करे तो मैं 6000 दिरहम दूंगा। क्या इस बात पे तुम सहमत हो? क्या इस बात से एग्री हो? क्या इस बात को तुम मानते हो? उसने कहा कि हाँ मैंने कहा था। वो खुश हो जाता है कि ये शख्स आ गया है, अच्छा मौका है, मैं इसे अपना दुश्मनी सधाऊंगा, अपना दुख निकालूंगा। लिहाजा वो कहता है कि हाँ मैंने ऐसा कहा है, क्या तू नौकरी करेगा? हजरत ने कहा कि अगर तू जबान का पक्का है तो दोस्त मुझे 6000 दिरहम अभी देता है, अगर तू देता है तो मैं तेरी नौकरी के लिए तैयार हूँ। मैं 6 माह तक तुम्हारी मवेशियों को, तुम्हारे गायों को मैं चारा दूंगा लाकर, लेकिन तू अपने बात से छिड़ेगा नहीं। लिहाजा वो सोचता है कि इनको और ज्यादा जमीन किया जाए, हो सकता है ये बाद में चले जाए, तो उसे भरोसा नहीं होता है ईसाई को। ईसाई ने कहा कि अगर तुमको ये ऑफर मंजूर है तो मैं तुझे 6000 दिरहम जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले काजी के पास चलो, कागजात पे सिग्नेचर करो, ऐसा ना हो कि मैं तुझे 6000 दिरहम दे दूं और तू बाद में काम करना छोड़ दे, यहाँ से चला जाए। लिहाजा चलो एग्रीमेंट किया जाएगा, दस्तावेज बनाया जाएगा और 6 माह का एग्रीमेंट बनाने के बाद ही मैं तुझे पैसा दूंगा। लिहाजा वो सोचता है कि ऐसा कहूंगा तो हो सकता है हड़क जाए और यहाँ से चला जाए। लेकिन हजरत शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दरवेश राजी हो जाते हैं, दस्तावेज बनाया जाता है। हजरत नौकरी के लिए वो राजी हो जाते हैं, नौकरी के लिए वो राजी हो जाते हैं। और जब इसकी खबर वो इलाके में फैल जाती है कि फला मुसलमानों का पेशवा शरफुद्दीन दरवेश उस ईसाई के घर जाके ले जाएंगे, नौकरी के ले जाएंगे, उसे घर नौकरी करेंगे, उनके मवेशियों को खाना देंगे, और एग्रीमेंट उन्होंने दस्तखत की है। क्योंकि उस इलाके का जो बादशाह था, जब उसे ये खबर लगती है ये दरवेश, ये अल्लाह का वली जिसने पाए का बंदूक है शरफुद्दीन दरवेश, उनके घर, उस ईसाई के घर नौकरी के लिए जा रहे हैं, तो अकीदत से भर जाता है, मोहब्बत में भर जाता है। बादशाह ने क्या किया कि 12000 दिरहम लेकर शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के बाजार में हाजिर होता है और अर्ज करता है, ये अल्लाह के वली,
मेरे माँ बाप आपसे कुर्बान ये दीजिए 12,000 दिरहम उसे लौटा दीजिए। उसने आपको 6,000 दिरहम एग्रीमेंट पे सिग्नेचर करवाई है, हम आपको 12,000 देते हैं कि आप उस नौकरी को छोड़ दीजिए और 6,000 की जगह पे 12,000 उसे दरवाजे पे फेंक दीजिए और एग्रीमेंट को कैंसिल कर दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैंने जब एग्रीमेंट पे सिग्नेचर कर दिया है तो मैं 6 माह तक नौकरी जरूर करूंगा। लिहाजा अगर आपको ये पसंद है कि आप मुझे 12,000 रुपया दिरहम दे तो मुझे दे दीजिए, लेकिन ये शर्त मत लगाइए। तो क्या बोलते हैं कि ये शर्त मत लगाइए कि मैं एग्रीमेंट को रद्द कर दूं। आपको पैसा देना है, अगर इतनी मोहब्बत हमसे है तो 12,000 दिरहम मुझे दे दीजिए, मैं अपनी मर्जी से इस 12,000 दिरहम को कहीं भी खर्च कर दूं। इस लिहाज से अगर इस एग्रीमेंट से अगर आप मुझे देते हैं, इस बात पे राजी होकर आप देते हैं तो दे दीजिए। अगर ये शर्त लगाइएगा कि 12,000 दिरहम देकर मैं एग्रीमेंट को रद्द कर दूं, ये मुझसे होने वाला नहीं है। क्योंकि बादशाह को कीमत थी, मोहब्बत थी, वो मायूस तो होता ही है लेकिन हजरत के सामने की एक भी नहीं चलती है। लिहाजा वो क्या करते हैं, वो बादशाह क्या करता है, 12,000 दिरहम के पास रख देता है और चला जाता है। ये शरफुद्दीन दरवेश रहमतुल्लाह अलैह क्या करते हैं, वो बैठ जाते हैं चौराहे पर और आवाज देते हैं कि किसी की बेटी कुंवारी है, आओ मेरे पास माल है, आओ तुम अपनी बेटियों की शादी कर लो। लिहाजा वो दरवेश क्या करते हैं, वो 12,000 दिरहम में 6-7 बच्चों की शादी कर देते हैं। 6-7 वो पैसा जो उन्हें मिला था, जो बादशाह ने दिया था, उस पैसे को उन्होंने गरीब बच्चों की और पहले तो 6,000 दिरहम लेकर गए तो 6 बेटी मुल्तान की बेटी किशोर की शादी में शर्त हुआ और बाद में जो बादशाह ने पैसा दिया वो भी उतार दिया अल्लाह के राह में, अल्लाह की रजा के लिए, रसूल की रजा के लिए, और उससे भी कुछ लड़कियों की शादी करा देते हैं। उसके बाद जब ये मामला जब उसे पता चला ईसाई को कि बादशाह सलामत आए थे और इस दरवेश को 12,000 दिए थे कि लौटा दो, लेकिन ये अल्लाह का वली इतना पुख्ता है वादे का, अगर वो चाहता तो 6,000 की जगह 12,000 में चौखट में फेंक कर गुलामी से निकल जाता, नौकरी को छोड़ देता, लेकिन वाकई में अल्लाह का बंदा है, इसने अपने जबान की कदर की है। उनसे कहा था कि 6 माह मैं नौकरी करूंगा तो करूंगा, लेकिन दौलत के लालच में आकर मेरे पास 12,000 दिरहम हो गए हैं, मैं उसे पीछा छुड़ा लूं तो आप चाहते तो पीछा छुड़ा सकते थे, लेकिन मैं इसका इतराज करता हूं कि आप अल्लाह के वली हैं, आप नेक बंदे हैं, साले बंदे हैं, मैं आपके इस किरदार पे फिदा हो चुका हूँ, मैं इस किरदार पे इतना मुतासिर हो चुका हूँ कि मेरा दिल कहने पे मजबूर हो गया है। तो आखिरी गुलामों का ये हाल है तो आका का आलम क्या होगा। गुलाम जब नबी की तबाह करते हैं तो उनका ये किरदार है तो जिससे सच्ची में पूरी कायनात बने, और ये लोग जिस नबी की तरीकार करते हैं, नबी के सीरत पे चलते हैं, तो गुलामों की ये हालत है तो आका का आलम क्या होगा, मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। यह ईसाई कहता है कि आपके इस किरदार ने मुझे मोहब्बत पे मजबूर कर दिया है, आपकी अकीदत मेरे दिल में बेदार हो चुका है, आपसे मुझे मोहब्बत हो गई है, आप इस किरदार से मैं बहुत ही मुतअद्दिब हो चुका हूँ, लिहाजा मुझे भी दायरे इस्लाम में ले लीजिए, मुझे भी कलमा पढ़ा कर मुसलमान कर दीजिए। बेशक आप अल्लाह के वली हैं, मैं इसकी गवाही देता हूँ। लिहाजा गौर कीजिए, ये किरदार होते हैं सहाबा का, ये किरदार होते हैं औलिया का, और ये किरदार होते हैं आशिक़े रसूल जो होते हैं, उनका ये किरदार होता है। काश अगर हम मुसलमान नबी के सीरत पे अमल करते तो आज हर जगह हम कामयाब नजर आते, आज हालातें बर्बाद होते हुए नजर नहीं आते। हजरत ने फरमाया, हजरत फरमाते हैं कि जब मैंने ये कार्य खैर किया और इन पैसों से मैंने जिन बच्चों की शादी कराई, ये अल्लाह को इतनी पसंद आई कि मेरी रूहानियत में इतनी तेजी से इजाफा हुआ कि अल्लाह ने मुझे बहुत बड़ा मनसब अता फरमा दिया। तो गौर कीजिए, होते हैं आशिक़े मुस्तफा, नबी के चाहने वाले, नबी के गुफ्तार पे अमल करते हैं, नबी के हदीस पे अमल करते हैं। मुस्तफा ने जो फरमा दिया तो फरमा दिया है। अल्लाह के नबी ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया है कि सबसे अच्छी शादी वह है जो सबसे कम खर्चे में निपट ली जाए। लेकिन अब दो मुसलमानों को हुआ क्या है,
میں ایک دکھوتی کے پروگرام میں گیا، کیا بتاؤں، اتنی فضول خرچ کیا کہ آنے والے